local community, expert, research scholars, students communities, elders ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, उनके साथ चर्चा करने के बाद जो निकलेगा, तो हेल्थ हो या वाटर हो या और कोई भी चीज़ हो, हिमालयन हमारे जो क्रिटिकल इश्यूज हमारे पास यहाँ होते हैं उसको एड्रेस करने का अपना एक तरीका है अरुणाचल का. Where we have people from think tanks, government, we have people from NGOs sitting together on a panel and talking about the real challenges of the Himalayan region. So we ensure that the focus group discussion, which is a very key part where we engage our delegates and we engage our delegates in small groups to talk about the challenges and their lived realities. हेलो व्यूवर्स, मैं दानिया और आप देख रहे हैं ATTV. आज के समाचार. हिम सभा 2025 हिमालय रीजन में हेल्थ और वाटर पर एक राष्ट्रीय संवाद है जो इसमें आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य है टू राइज अवेयरनेस एंड जनरेट सॉल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ चैलेंजेस इन द रीजन. क्रिटिकल इशू जैसे कि ग्लेशियर रिट्रीट, वाटर सोर्सेज, मेंटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम पर चर्चा करेंगे. ये कार्यक्रम एक विस्तारित रूप में समाप्त होगा जो सरकार के लिए क्रियात्मक सुझाव को शामिल करेगा. ये हिमालय को सुरक्षित रखने और क्षेत्र की भलाई के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी को गढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस रिपोर्ट के डिटेल आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ATTV पर. आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में 3 दिन का हिम संवाद कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हिमालय रीजन को लेकर ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है. सो इसका 4th एडिशन ईटानगर में हो रहा है. सो इस कॉन्फ्रेंस को में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हैं. विजय स्वामी जी, नॉर्थ ईस्ट में लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं एंड रिवॉच के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. सो आई होप कि आप लोग विजय स्वामी जी को जानते ही होंगे. एंड वानी मनुराज, वानी जी सेवा इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं एंड हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस है हिम संवाद 3 दिन का, उस कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर हैं. सो आज के इस कॉन्फ्रेंस में हम हिम संवाद के बारे में जानेंगे एंड वो आपके जो प्रश्न होंगे, पहले वानी जी बताएंगे हिम संवाद का क्या उद्देश्य है और ईटानगर में हम क्यों कर रहे हैं. उसके बाद डिटेल ब्रीफिंग विजय स्वामी जी रिवॉच देंगे. Good afternoon to everybody. So I am from Seva International. Seva International is an organization which has been working in the area of disaster management for the last more than 25 years. We started out of the Latur earthquake with an idea to connect the diaspora of the Indian diaspora with areas which are facing disaster across India. From the work that we did in disaster management, we later turned to rehabilitation projects, which are now developmental activities which we are doing across the country. These activities include domains such as health, education, livelihood. We work across the length and breadth of the country. And Him Samvad was one of our interventions to work towards policy and discussion on sustainable development. So Him Samvad, so the idea of Him Samvad came from the 2017 conference that we did in Delhi, which was the first sustainable development conference in the country, which talked about sustainable development in the context of India and how what is the Indian perspective on development. From that, we realized that the Himalayan region, we would say the Himalayan region is very important to the world itself because of its ecological and biodiversity which is there. And therefore, we looked at ensuring that when we talk about sustainable development, we look at the mountainous region, we look at the landscape of the Himalayan region, and what does sustainable development look for this particular region of our country. And that is why we ideated on Him Samvad, which is Himalayan
ideation meet and samvad, so a discussion on the Himalayan region. The first Him Samvad happened in Dehradun, where we did it in FRI Dehradun. We had different sessions, we had experts, and from that a lot of recommendations came about for civil society, think tanks, NGOs, also for government officials, which Seva International has been taking forward. We then did the second edition after 2 years. We did that in 2020 in Solan. We did that in 2022 in Solan. So the first Him Samvad happened in 2020 and the second happened in Solan in 2022. And this happened right after COVID. So COVID was a very important topic which was discussed. We had 4 different themes on which we spoke on. We got around 150 recommendations from that, from our Solan conference, which we then ensured. We were looking at collaboration and we saw a lot of collaboration happening between the participants of the conference. The Him Samvad is based on the idea that when we talk about sustainable development, it cannot happen without talking with the communities, without ensuring that there is the indigenous perspective which should be part of these conversations. It should not be academic, it should be cross-sectoral, where we have people from think tanks, government, we have people from NGOs sitting together on a panel and talking about the real challenges of the Himalayan region. One thing which is very unique to this conference, which we did last year, was the focus group discussion. So in conferences where we have participants who come and listen, we wanted to ensure that the lived realities and experiences of the participants also, of the delegates who are coming from across the Himalayan region, should also be part of this conference. So we ensured that the focus group discussion, which is a very key part where we engage our delegates and we engage our delegates in small groups to talk about the challenges and their lived realities, so that we can get better and more nuanced recommendations from the delegates as well as the speakers. And that is how the conference has been envisaged. With regards to how this conference in Itanagar is going to be impactful and the details, I will request Vijay ji to take that forward. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम विजय स्वामी है. मैं रिवॉच रोइंग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस कल्चर्स एंड हेरिटेज रिवॉच, इसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ. और ये कॉन्फ्रेंस जो है सेवा इंटरनेशनल दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड रिवॉच ये जॉइंटली कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. बेसिकली एज वाणी जी सेड राइटली कि अलग अलग जगहों में हिमालय के अलग अलग क्षेत्र में इसकी कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद वी थॉट दैट हमारी ये कॉन्फ्रेंस है ये अरुणाचल में भी होनी चाहिए. तो इसलिए हमने ये विचार किया, क्योंकि अरुणाचल का यदि सोशो डेमोग्राफिक यदि विचार करेंगे तो आपको पता चले कि वी हैव ए ग्रेट नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, दे हैव ए नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम to address the issues, maybe herbal medicine, maybe water resource management, maybe हमारे जग अलग अलग जगहों में समाज के साथ जो और पृथ्वी के साथ जो होता है ज़मीन के साथ, इसके अलग अलग नियम, जैसे हमें सेक्रेट ग्रोव्स बनाते हैं, है कि नहीं. तो हेल्थ हो या वाटर हो या और कोई भी चीज़ हो, हिमालयन हमारे जो क्रिटिकल इश्यूज़ हमारे पास यहाँ होते हैं उसको एड्रेस करने का अपना एक तरीका है अरुणाचल का. तो हमने सोचा कि मॉडर्न मीन्स और ट्रेडिशनल नॉलेज ये दोनों को जोड़ते हुए हम इस हिमालय के चैलेंजेस को कैसा हम लोग एड्रेस कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली एड्रेसिंग बट वी आर गोइंग टू एज वी डिस्कसिंग मेनी एंड मेनी मोर इश्यूज इन द कॉन्फ्रेंस. ये जो हिम संवाद में तब एक्सपर्ट्स लोग जो आए उनके सजेशंस, लोकल कम्युनिटी एक्सपर्ट, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स कम्युनिटीज़, एल्डर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, उनके साथ चर्चा करने के बाद जो निकलेगा दैट विल फॉर्म द पॉलिसीज़. वी विल सजेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट टू मेक द पॉलिसीज फॉर दैट एंड फाइंड ए करेक्ट सोल्यूशन एंड यू कैन से इट विल बेनिफिट टू द लोकल कम्युनिटीज़. सो बिकॉज ऑफ दैट ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्व की है, क्योंकि every time when we do, sometimes we involve the local communities, but in Arunachal we have taken care of that traditional knowledge के लिए हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ इसको जोड़ के हम लोग दे रहे हैं. इसके साथ में हमने जो लोग बाहर के एक्सपर्ट लोगों को जो इन्वॉल्व किया है, दे आर वेरी रिनाउंड पीपल एक्चुअली.
तो जैसे कि मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। डॉक्टर अनिल कौर सॉरी, ये एक्टिंग वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैदराबाद वहाँ के हैं। ही इज़ ऑल्सो ए डायरेक्टर एक क्या पुनावाला, गुरुस पुनावाला ना सेंटर के वो डायरेक्टर भी है। और एक फॉर्मर एम्बेसडर है अनूप कुमार मुदगल, ही इज़ IFS ऑफिसर एंड रिटायर्ड है। फॉर्मर इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू मॉरिशस वो है। देन और एक है डॉक्टर मनोज नरजारी, एम आई राइट, या एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वो है। श्री सत्या एस त्रिपाठी, सेक्रेटरी जनरल ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो भी इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और उनका जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके बावजूद डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, डायरेक्टर IIM काशीपुर, वो भी आ रहे हैं। और राजीव इसार, ही इज़ फ्रॉम UNDP। ऐसे इसके बावजूद बहुत से लोग हैं। वी हैव इन्वाइटेड अराउंड 45 to 50 experts to deliberate and discuss these core issues of Himalaya। इसलिए हिम संवाद इसका नाम दिया है। हिम संवाद मीन्स ए डायलॉग ऑन हिमालया, इस तरह से इसका ये है। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ एक्टिवली सपोर्टेड दिस प्रोग्राम, आवर इनिशिएटिव। सो इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय सेवा इंटरनेशनल रिवॉच, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आई थिंक दैट दिस इज़ ए स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हिम संवाद। CM लॉन्च करने हैं। हाँ, और इस प्रोग्राम के लिए 23rd इवनिंग अराउंड 4:30 द इनाग्रेशन प्रोग्राम विल बी देयर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खंडू जी विल बी द चीफ गेस्ट। एंड इसका कंक्लूडिंग जो है 24 और 25 में पूरे डेलीगेशन होने के बाद में, डेलीबरेशंस होने के बाद में 25 इवनिंग देयर विल बी कंक्लूडिंग प्रोग्राम। और उसके लिए हमारे ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चवना मिंजी, ही विल बी द चीफ गेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ऑफिशियल्स, कुछ मिनिस्टर्स आल्सो विल बी पार्टिसिपेटिंग। उनके नाम कंफर्म हो रहे, उसके बाद में जानकारी बाद में दी जाएगी। परंतु हमारे इनॉग्रल गेस्ट विल बी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कॉन्क्लूडिंग प्रोग्राम विल बी ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर।